Hello everyone. So we are going to start with a new chapter which is wave optics. So मैंने ऐसा सोचा है कि अगर हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं और रिकॉर्ड ही कर रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं और इसका फायदा ये होगा कि इवन लेटर ऑन मे बी 5-6 months down the line whenever you want to revise this chapter you just directly have a look at this videos. So that's why starting with a new chapter and we will try to cover as many chapters as possible in a recorded way as well. So let us begin with wave optics. Okay. So in earlier standards we have learned that light travels in a straight line which while traveling through a uniform homogeneous medium, the path of light is called a ray of light. On encountering an interface with another medium, a ray of light gets reflected or refracted, changes its direction and moves along another straight line. The reflection is such that the incident ray, the reflected ray and the normal to the boundary surface at the point of incidence are in the same plane, and the angle of incidence, that is the angle between the incident ray and the normal to the reflecting surface, is equal to the angle of reflection, that is the angle between the reflected ray and the normal. Okay. तो यहाँ तक जो उन्होंने पैराग्राफ दिया है that basically tells you about reflection of light. ठीक है, तो अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, तो मान लेते हैं कि ये एक इंटरफेस है, ये एक नॉर्मल है. तो जब एक लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे है और ये जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है. Okay, so what it is telling you in the first statement is that the incident ray, the reflected ray and the normal to the boundary surface are in the same plane. So ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे they are all in the same plane. That is the first rule. And the second rule is that the angle of incidence क्या होता है? Angle of incidence मतलब ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल will be equal to the angle of reflection. Angle of reflection क्या होता है? ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो इक्वल होता है. So it says that I is equal to R. So that is exactly what the first paragraph is all about. So अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया है तो ये वर्डिंग्स फिर अपने आप लिख सकते हैं. उसके बाद ये तो हो गया रिफ्लेक्शन का बात. अब फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट while traveling from medium 1 to medium 2, the laws are again the incident ray, the refracted ray and the normal to the boundary between the two media at the point of incidence are in the same plane, and the angle of incidence and the angle of refraction are related by n1 sin I is equal to n2 sin R, where n1 and n2 are the absolute refractive indexes of medium 1 and medium 2 respectively. So if we just keep this aside, this is reflection. ठीक है, जहाँ पे I is equal to R होता है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के दो रूल्स आपको होपफुली समझ में आ गए हैं. तो अभी हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में. तो रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि वापस अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं और मान लेते हैं कि ये बाउंड्री है दो इंटरफेसेस का और ये जो है वो नॉर्मल है.
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये जो है वो नॉर्मल है और ये जो है वो बाउंड्री है। Okay, so now when there is a incident ray, so मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, तो डिपेंडिंग ऑन डेंजर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रैवल कर रहा है या रेयर मीडियम टू डेंजर मीडियम ट्रैवल कर रहा है, इट विल बेंड अवे और टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो मान लेते हैं कि ये ऐसे हो रहा है, ये जो है वो इंसिडेंट रे है और ये जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। सो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों में फर्क है। यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ। अब ये दोनों इक्वल नहीं होता, जैसे पिछले में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता था। अब यहाँ पे उन लोग ने रूल ऐसा बोला है कि n1 sin I is equal to n2 sin R, where obviously I और R जो है वो तो एंगल्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो n1 और n2 है ये इनकी रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस क्या होता है? तो बेसिकली अभी हमको पता है कि कोई भी चीज का अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो मीडियम्स के भी अपने प्रॉपर्टी होते हैं, जिसको उनको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, कितना वो मीडियम में डिस्टॉर्शन है या कितना वो मीडियम में एयर प्रेशर होता है या कैसे वो मीडियम बिहेव करता है। जैसे मीडियम मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम रास्ते पे भागते हैं वैसे हम पानी में नहीं भाग सकते, क्योंकि वो दो अलग अलग मीडियम है। जब हम रास्ते पे भाग रहे हैं तो हमारा जो मीडियम है वो एयर है, क्योंकि इवन तो हम जमीन पे चल रहे हैं बट जो प्रेशर आ रहा है वो एयर प्रेशर आ रहा है। लेकिन जब हम पानी में ऐसे भागने का ट्राई करते हैं तो जो प्रेशर आता है वो पानी का प्रेशर आता है। तो ऑब्वियसली हमको ज्यादा तकलीफ होता है जब हम पानी में भागते हैं या वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। तो सेम वे में मीडियम्स के अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है ये भी एक प्रॉपर्टी है उसका। तो n1 जो है वो मीडियम 1 का, अगर मान ले कि ये जो है वो मीडियम 1 है और नीचे वाला जो है वो मीडियम 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि n1 जो है वो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n2 जो है वो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल करके एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये लॉ बनाया है, जो शायद आगे के चैप्टर्स में, यही चैप्टर में हम आगे देखेंगे। तो ये है रिफ्लेक्शन और ये जो है वो है रिफ्रैक्शन। I hope this topic is clear. Let us just quickly revise this properly. रिफ्लेक्शन कब होता है? जब वो मटेरियल जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब पूरा का पूरा रे वापस चला जाए तो उसे बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसिडेंट रे है वो कुछ रिफ्लेक्ट हो और कुछ रिफ्रैक्ट हो, दैट इज पॉसिबल। बट हियर वी आर स्टडिंग द केस वेयर इट इज टोटल रिफ्लेक्शन या फिर टोटल रिफ्रैक्शन। तो टोटल रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा कि इंसिडेंट रे आया, बाउंड्री पे अटका और वापस रिफ्लेक्ट हो गया। वहां पे हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल बना है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। तो आई होप आपको ये क्लियर ही है कि ये जो है वो नॉर्मल है, ये जो वर्टिकल लाइन है, और ये जो है वो बाउंड्री सरफेस है। ओके, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या बोलते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये सीधा का सीधा एज इट इज नहीं जाएगा अनलेस ये दोनों मीडियम सेम है। तो या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल